Good morning to all the students. Today we will discuss the chapter light reflection and refraction. जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में. We introduced the some of the topics like light, what is light and what is reflection. So we इंट्रोड्यूस द लाइट. जैसे कि कल बताया था मैंने आपको कि लाइट क्या होती है. इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एक टाइप की एनर्जी है विच ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. जो जितनी भी अपने चीज़ें आसपास देख रही हैं वो दैट इज़ ओनली ड्यू टू लाइट. अगर लाइट ना हो वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. सो बेसिकली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए ऑब्जेक्ट like this, there is a suppose there is any object here. If I yes, this is any object. Okay, this is any object. Now when the light falls on this, there are three process happens here. What are those processes? Now here is coming the 100% of light. 100% लाइट इस पे आके स्ट्राइक करती है. Then here some of the light transferred through the object, some of the light is absorbed by the object, and some of the light is reflected back by the object. So basically there are three phenomena occurs. This is transfer, transmission. This the energy absorbed by the object is absorption, and energy which is sent back by the object, it is the reflection. So basically we will concentrate on this topic, that is reflection. The light reflected back by the object, because you have also studied in earlier classes that how we can see the objects. Objects are visible only when they reflect the light. Light fall on them and they reflect light, and that reflected light comes to our eyes and we can see the object. So similarly, what is the reflection of light? When light falls on a surface and is reflected back into the same medium, we say reflection has taken place. तो जब भी किसी के ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है वो उसको दोबारा वापस भेज देता है, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. अब देखो बेटा, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये भी दो तरह की होती है. कौन कौन सी? जैसे अपने बात करें प्लेन मिरर की. ठीक है, for example there is a plane mirror. This is the plane mirror. Okay, now as you know it is polished from one side. Okay, so light cannot transmit from this plane mirror, क्योंकि आप देखते ही हो बेटा आपके घरों में भी प्लेन मिरर लगे होते हैं जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो. तो उसमें क्या है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसमिट नहीं होती, क्योंकि वो एक तरफ से ओपेक होती हैं. So when light comes to a plane mirror, suppose there is any object here, AB object. The light comes from the AB object and fall on the plane mirror. Then this light will be reflected back in the same pattern. वो जिस पैटर्न में आई थी उसी पैटर्न में वो उसको वापस भेज देगा, और वही ऑब्जेक्ट हमें, जो ए बी ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा. लेकिन अगर अपनी बात करें दूसरे सरफेस की, तो कोई भी सरफेस ले लो, जैसे अपनी वॉल ले लो. वॉल के ऊपर बेटा जब कोई, जैसे ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट वॉल के सामने खड़ा है, जैसे आप इस वॉल के सामने खड़े हो. ठीक है, तो आप अपना चेहरा उसमें देख सकते हो? नहीं. क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस है वो प्लेन नहीं होता. अब यहाँ पे देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट लाइट डालेगा, ये पैटर्न में लाइट आएगी, लेकिन ये
जो है लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी इस वॉल से, सी दिस इज द प्लेन मिरर and this is the wall. Okay, now after reflecting the wall, the light will be reflected back, not in the same pattern. It is reflected like this. Okay, not in the same pattern, or it is in the different pattern. So we cannot see the object AB here. जैसे हम पहले AB ऑब्जेक्ट को यहाँ देख पा रहे थे, बट नाउ यहाँ पे क्या है, AB ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, जैसे आप दीवार के सामने खड़े हो तो आप अपना चेहरा तो नहीं देख पाते, तो क्या देखते हो, दीवार को देखते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो सरफेस है, वॉल का सरफेस है, वो प्लेन नहीं होता। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द प्लेन मिरर, then the surface of the plane mirror is the optically plane, वो बिल्कुल प्लेन होता है। now जो रिफ्लेक्शन ये प्लेन मिरर करेगा, जो रिफ्लेक्शन ये प्लेन मिरर करेगा, दैट इज़ नोन एज दी रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये जो वॉल कर रही है, क्योंकि ये देखो बेटा, प्लेन मिरर तो उसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में लाइट आ रही थी उसी पैटर्न में उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन ये वॉल क्या कर रही है, वॉल ऐसे करती है। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये जैसे वॉल है, इसमें ऐसे लाइट आई तो ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट तो करेगी, लेकिन उसको ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में कर देगी, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन प्लेन मिरर कैसे करता है, वो ऐसे लाइट आई और उसको उसी पैटर्न में वापस ऐसे भेज देता है। तो इस तरीके से बेटा, यही कारण है दैट यू कैन नॉट सी योर फेस इन द वॉल, बट यू कैन सी द फेस इन द प्लेन मिरर। सो द रिफ्लेक्शन डन बाय द प्लेन मिरर इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो वॉल ने की, जो रिफ्लेक्शन वॉल ने की, दैट इज नोन एज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो these आर द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो आपको मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, दिस इज दी सिंपली सेंडिंग बैक द लाइट रेज in the same medium is called the reflection. Now see students, if we move further, then आपको जैसे मैंने कल भी बताया था कि जैसे ये एक मिरर है, दिस इज ए मिरर, इसके ऊपर लाइट आके गिरती है तो ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। अब ये वाली लाइट को हम, जो इसके ऊपर आके गिरेगी, दैट इज़ नोन एज इंसिडेंट रे, उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। और ये जो इसने सेंट बैक कर दी, मतलब इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये शायद मैंने कल भी बताया था आपको। उसके बाद बेटा एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्या, किसको कहते हैं, ऐसी लाइन, ये जैसे ये आपका हो गया प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, इसके 90 डिग्री पे जो लाइन होगी, ये 90 डिग्री पे एक लाइन है एन नाम से, इसका नाम है बेटा नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और ये आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। सो रिमेंबर द लाइन विच इज़ 90 डिग्री टू द प्लेन मिरर इज द नॉर्मल। सो नाउ यहाँ पे डेफिनेशन, प्लीज रीड डाउन द डेफिनेशन। द नॉर्मल इज ए लाइन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वही बात वहाँ पे लिखी हुई है कि जो राइट एंगल 90 डिग्री एंगल बना रही होगी उसे हम। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस कल भी बताया था जैसे मैंने, कि लाइट जो आएगी, देखो ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये मिरर, दिस इज द मिरर M, this is the normal N, okay, so this is the light, अब इसको क्या बोलेंगे, what is this light is incident ray,
जिसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम बैक in the same medium. So this is called reflected ray. So this is incident ray and this is reflected ray. And the angle made by incident ray with the normal, मतलब ये वाला एंगल, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, ये इन दोनों में के बीच में जो एंगल होगा दैट इज़ दी एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आई से डिनोट करते हैं. एंड द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड द आर, मीन्स एंगल ऑफ reflection. Okay, so always remember, please read down the definition. Angle of incidence, it is the angle made by incident ray with the normal. And next we have the angle of reflection, it is the angle made by reflected ray and the normal. Next we have object. Object जो आपके जिसकी इमेज आप देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर सीइंग योर इमेज इन योर मिरर, देन यू आर द ऑब्जेक्ट. इफ़ यू आर सीइंग एनी अदर इमेज इन द मिरर, तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा. सो इट इज़ द थिंग दैट फॉर्म्स एन इमेज. वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो इमेज बनाती है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. तो इमेज क्या होती है, इमेज इज द प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, इमेज क्या है, इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो बिल्कुल ऑब्जेक्ट हूबहू ऑब्जेक्ट की तरह दिखती हो, दैट इज़ द इमेज. सो डेफिनेशन इसकी, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन. उसके बाद है वर्चुअल इमेज, द इमेज दैट कैन नॉट बी obtained ऑन ए स्क्रीन. देखो इमेज भी दो तरह की है. एक तो इमेज है वर्चुअल इमेज और एक है रियल इमेज. रियल इमेज विच कैन बी फॉर्म्ड डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन. जैसे आप सिनेमा घर में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि एक प्रोजेक्टर लगा रहता है, या आपके शायद क्लासरूम्स में भी होता है, जो डिजिटल क्लासरूम्स होते हैं उसमें लगा होता है. तो प्रोजेक्टर क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर जो है वो पूरी मूवी चलती रहती है. स्क्रीन के ऊपर वो लाइट डलती है और उससे वो स्क्रीन के ऊपर इमेज बनती है. तो वो इमेज हो गई रियल इमेज. ठीक है, दैट इज़ दी, क्योंकि वो डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर नहीं आती. और दूसरी है वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज जो आप अपने मिरर में जो आप अपनी इमेज देखते हो, वो वर्चुअल इमेज होती है. तो इस तरह से बेटा इमेज के भी 2 टाइप्स होते हैं. उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कल भी करवाया था आपको. 2 तरह के 2 लॉज होते हैं. वन इज़ कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये बताया था आपको मैंने. हेयर इफ़ वी सी, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द मिरर. ठीक है, तो आपको पता है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल. ठीक है, इस तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे with the normal. So this is the I, this is the R, and according to our law, angle I is always equal to angle R. और दूसरा लॉ हमें कहता है कि ये तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन में होंगे. तो आप जैसे देख सकते हो बेटा, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में आपको दिख रहे हैं. तो ये 2 लॉज हैं बेटा. यहाँ तक आपने अच्छे से पढ़ना है. कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो मैसेज कर देना बेटा. थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास. I will send you the written work tomorrow and write it in your
notebook. Thanks.